हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग भैया फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो आज हम 2024 का जेई एडवांस का जो पेपर हुआ है उसका पेपर 2 डिस्कस करने आ रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों को भी बहुत आसान पेपर लगा होगा, जैसा मुझे फील आई पेपर देख के कि वो ऑल टाइम ईजीएस्ट पेपर आया है। पेपर 2 एटलीस्ट, पेपर 2 बहुत आसान पेपर था। पेपर 1 थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट था, तो वो भी मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके अलावा अगर आप पैनिक नहीं करेंगे तो पूरा पेपर डुएबल था। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, और एक रेगुलर क्वेश्चन, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन। यू नीड टू फाइंड tan ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो इफ आई टेक साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एज ए, साइन इनवर्स of 3/5 as angle A, hence sine of A is 3/5. Sine of A becomes 3/5. And if I take cos inverse of 2 by root 5, cos inverse of 2 by root 5 as angle B, that is cos of angle B will be 2 by root 5. And both the angles A and B will definitely lie in 0 to pi by 2. Okay, now you need to find the value of tan of angle A minus 2B. This is the task. Tan of angle A minus 2B. Now this will be tan of A minus tan of 2B over 1 plus tan E tan 2B by using basic formula of tan of A minus B. Now if we have sine of angle A, we can definitely find sine of, cos of, tan of any angle. Even we can find angle, half angles, trigonometric functions of half angles of A, one third angles of A. So let me find tan of angle A. Tan of angle A, where sine of A is 3/5. Sine of A is 3/5 means perpendicular over hypotenuse. Then base is 4 and it is 3/4, which is a standard angle. Tan of angle A is 3/4. And what about tan of angle B? Tan of B, where we have cos of angle B. Cos of angle B is 2 by root 5. Base over hypotenuse. That is perpendicular will be 5 minus 4 root of 4 will, 5 minus 4 root of that will be 1. That is tan of B will be 1 by 2. Okay, but over here you need tan of 2B. What is tan of 2B? Tan of 2B will be 2 tan B, 2 tan B over 1 minus tan square B. So that will be 1 upon 3 upon 4. That simplifies to 4 upon 3. Okay, now just substitute over here. Tan A is 3/4 minus tan 2B is 4/3 over 1 plus 3/4 times 4/3. So it comes out to be 9 minus 16 over 12 over, it will be simply 2. That is minus 7 by 24. बिल्कुल regular सा question. Hence the answer will be your B, minus 7 by 24. बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन जो आप रेगुलरली हर इनवर्स में पहला क्वेश्चन इस टाइप का करते ही हो, बेसिक अलजेब्रा बेस्ड. Okay, let's look at this question. Second question, it is of area. Okay, it consists of all those points xy such that xy are real to real and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, y square is less than equal to 4x, y square is less than equal to 12 minus 2x. It's a parabola in first quadrant, and over here it is a line. So let me plot this. So x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, that is first quadrant. Now y square is less than equal to 4x. So let me draw a parabola. Y square is less than equal to 4x. Hence y square is less than equal to 4x in this region. Above x-axis, below the curve, y square is less than equal to 4x. Next curve is y square is 12 minus 2x.
which is nothing but minus 2x minus 6. Now vertex of this parabola will be definitely a leftward parabola whose vertex is at 6, 0 over here, and it is a leftward parabola. Again, we need just first quadrant region. So still this we have, this is the region, this is the desired region. Okay, let me find the intersection point of this. Let us y square is equal to 4x, letting y square 4x as here, 4x is equal to 12 minus 2x, that is 6x is equal to 12. x की वैल्यू आ गई आपकी 2, and at x equal to 2 we get y as root of 8. At 2 y is root 8, and this intercept will be of leftward parabola, that is when x is 0 I'll get root 12. Okay, now there is another line, 3y plus root 8x is less than equal to 5 root 8. Okay, now over here if I take x as 0 I'll get y as 5 root 8 by 3, and if y is 0 x is 5. So it started with this point 5, 0, and when x is 0 y will be 5 root 8 by 3. Now you need to judge this, that this 5 root 8 by 3 is more than this root 12. Somewhere here. And also notice that this line is also passing to this point 2 comma root 8. 2 comma root 8. If you let x as 2 over here, that is 2 root 8, and y as root 8 over here, that will be 5 root 8 only. That is, this line is passing through this point, this intersection point of the two parabolas, and this point. That is, line will be like this. Okay. Now what is region about line is towards origin, because if you substitute origin over here, you will say 0 plus 0 is less than 5 root 8. That is, in first quadrant points, the shaded region will be this one. This is the desired region. इस parabola के नीचे, इस line के इस side, and इस parabola के इस side. That is, this is the desired region. Now let us find the required area. So if we integrate from 0 to 2 root of 4x, and from 2 to 5, so there is no need of finding the area of this triangle, because you can find this by a simple mensuration. It is half into base length is 3, and height of the triangle will be root 8. So this part will be nothing but, if you write root 8 as 2 root 2, it will be 3 root 2. What is root of 4x? It will be 2 times x to the power half, that is x to the power 3 by 2 by 3 by 2, from 0 to 2. Now this part will be 2, 4, 4 to the 8, 8 root 2 by 3. 8 root 2 by 3 plus 3 root 2. Now the desired area will be 9 plus 8, that is 17 by 3 root 2. 17 by 3 root 2. And the area is given to be in the form of alpha root 2. That is, alpha simplifies to, alpha is nothing but 17 over 3. That is, answer will be B option. तो अगेन अ रेगुलर क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सिंपल सा, एक पार्ट में आपने रेगुलर पैराबोला को इंटीग्रेट किया और एक पार्ट में आपने ट्रायंगल को इंटीग्रेट किया और सिंपली एरिया निकलाया. Okay, now let's see this third question. It says let K belongs to R and limit
का एक अगेन रेगुलर क्वेश्चन. इट सेज साइन ऑफ साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स होल टू द पावर 2/x इज गिवन टू बी e टू द पावर 6 एंड यू नीड टू फाइंड द पैरामीटर k. तो लिमिट का जो हमारा बेसिक रूल होता है, पहले हम क्या करते हैं इसमें, हम एग्जैक्टली फॉर्म देखो कौन सी है फॉर्म. तो इफ यू लेट x टेंडिंग टू 0 प्लस द inside the bracket first term will tend to 0, second term will tend to 1, third term will tend to 0 to the power tending to positive infinity. That is form will be tending to 1 to the power tending to infinity. तो उसके लिए जो हम रेगुलर हमारा टेम्पलेट है जिसमें हम टेंडिंग टू 1 के पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं. दैट इज इफ फंक्शन टू द पावर फंक्शन फॉर्मेट में f is approaching to 1 and g is approaching to infinity, then we write this as limit x tends to a f to the power g will be nothing but limit x to the tends to a e to the power function gx times function fx minus 1. तो ये अप्लाई करते हैं ऑन दिस, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट x tends to 0 plus it will be e to the power our gx function over here is exponent function over here is 2 by x times base function minus 1. That will be sine of sine kx plus cos x plus x minus 1. ओके, तो इसको प्रोसीड करते हैं. इट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस e टू द पावर 2. अब ये जो 2 अपॉन में x है, अपॉन x को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अंदर, तो आई एम राइटिंग ओवर हियर साइन ऑफ kx बाय x एंड आई एम क्लबिंग दीज टू cos x एंड माइनस 1. आपको सारे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लर्न रखने हैं कि आपको किन दोनों को मर्ज करके आपको x को डिवाइड करना है. तो लेट मी राइट cos ऑफ x माइनस 1. और आप ऑब्वियसली सोच सकते हो कि मैंने cos x के नीचे अलग से x को क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि अदरवाइज वो लिमिट ही एग्जिस्ट ना करती. ये लिमिट हमें लर्न है कि दिस लिमिट एग्जिस्ट and plus x over x becomes 1. Okay, now can you say I can write sine of sine kx by dividing by sine kx and multiplying by sine kx as simply sine of kx by basic idea sine of theta by theta tends to 1. Then if similarly if I write sine kx by x by multiplying and dividing by k, I can take this limit goes to 1 and hence I get the limit simplifies to e to the power twice of k plus 1. And what about this cos x minus 1 by x? Now what is this cos x minus 1? This is nothing but minus 2 sine square x by 2 and over x. So I can write sin x by 2 by x and 2 sine of x by 2, and sin x by 2 by x will tend to half and this will tend to 0. That is this limit tends to 0. Hence answer will be e to the power twice of k plus 1. And this limit is given to be as e to the power 6. That is k plus 1 simplifies to 3. K plus 1 simplifies to 3. Hence k is equal to 2. That is our option is B. तो अगेन बिल्कुल रेगुलर सा क्वेश्चन जो आपको सबका होना नहीं चाहिए था. Okay, moving on to fourth question. क्वेश्चन का जो लुक्स है वो क्लियरली ऐसा शो कर रहा है कि एफ एक्स एक पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है, एक अगेन स्टैंडर्ड फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाय एक्स स्क्वायर और वेयर एक्स इज नॉन जीरो एंड इट इज जीरो व्हेन एक्स इज जीरो. एंड आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो लुक्स ये कह रहे हैं कि शायद क्वेश्चन जैसा आप रेगुलरली कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में करते हो वैसा सा क्वेश्चन होगा, बट अगर आप ऑप्शन जज करो, ऑप्शन में इसमें क्लियरली कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की कहीं बात नहीं हो रही. इट इज सिंपली सेइंग कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के नंबर ऑफ रूट्स पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है. एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के नंबर ऑफ रूट्स पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है पूरा का पूरा. तो हमें एफ एक्स के रूट्स ही जज करने हैं. तो लेट मी स्टार्ट विथ एफ एक्स इज x square sine of pi by x square when x is non-zero and is 0 when x is 0. और हमें रूट्स जज करने हैं. तो एक जीरो तो एग्जैक्टली जीरो ही हो गया. f of 0 is clearly 0. Hence we can say 1 0 is x equal to 0 is a root. Okay, but anyway 0 आपने इसके आप चेक कर सकते हो कि चारों ऑप्शन में किसी में भी जीरो को एज
इनपुट नहीं लिया हुआ है, तो 0 पे हमें कमेंट नहीं चाहिए, f0 is 0. Now for other than zeros, for x other than 0, let me consider roots of fx equal to 0. At what values of fx is 0? That is x square sine of pi upon x square के zeros देखते हैं कौन कौन से हैं. Okay. Now, if x is non-zero, x square is definitely positive quantity. So let me drop this. That is sine of theta will be equal to 0. And sine of theta will be 0 for theta equal to n pi. That is pi over x square will be equal to n pi, where I can say n is a whole number. N is a whole number. Okay, let me write n is a natural number. Because I can see over here, it is always positive. So n must be positive number and n is an integer, so n must be a natural number. So what are the values of x? X comes out to be, I think pi get cancelled, and x comes out to be plus minus 1 over root of n. X comes out to be plus minus 1 over root of n. That is n is a natural number. That is roots क्या क्या आ गए? अगर हम n को plug in करें natural number values, तो x is equal to plus minus root 1, plus minus 1 upon root 1, plus minus 1 upon root 2, plus minus 1 upon root 3, and this goes on. तो फाइनली आई कैन सी कि रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो के सारे रूट्स क्या क्या आ गए? एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स आ गए आपके 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3. और रूट्स का नेचर आपको क्लियरली ये शो कर रहा है कि सारे के सारे रूट्स टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहे हैं. मतलब पॉजिटिव साइड से 1, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 4. सिमिलरली नेगेटिव साइड से माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1 बाय रूट 2, एंड दिस गोज ऑन. दैट इज रूट्स कहाँ पे रूट्स कहाँ पे हैं? अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन मार्क कर लूँ, वन रूट इज 1, अनदर रूट इज माइनस 1, नेक्स्ट रूट इज 1 बाय रूट 2, इधर माइनस 1 बाय रूट 2, इधर 1 बाय रूट 3, माइनस 1 बाय रूट 3. ऐसे रूट्स आ रहे हैं और इस तरफ मूव करते जा रहे हैं, इस तरफ मूव करते जा रहे हैं. ओके. तो और दूसरी चीज, अगर आप फंक्शन का नेचर देखो, अगर आप फंक्शन का नेचर देखो, ये जो फंक्शन मेंशन है, क्या मैं कहता हूँ, इट्स एन इवन फंक्शन. इट्स एन इवन फंक्शन. ओके. तो इसका एक रफली ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा. fx over here is x square sine of 1 pi by x square. fx is x square sine of pi by x square when x is non-zero. तो अगर हम इसका ग्राफ स्केच करें, 1 is root, minus 1 is root. So if I take all values other than more than 1, if x is more than 1, then can I say pi by x square is less than pi and more than 0. That is from 1 to infinity, the angle will be in either first or second quadrant. That means you can say sine of pi by x square is definitely positive. Hence definitely x square into sine of pi by x square is always positive. That is fx is a positive quantity. And what if I take x tends to infinity? That it is clearly graph is tending to infinity. fx is tending to infinity. So graph will be something like this. And next root यहाँ पे आपका कौन सा आ रहा है? 1 by root 2. So what if I write x is between 1 by root 2 and 1? 1 by root 2 is less than x is less than 1. So what is the range of pi by x square? So pi by x square is less than, I think, 2 pi and more than pi. That is, this is nothing but range of theta over here will be between third and fourth quadrant. That is, sign will be negative, x square will be positive. That is, it is a negative below x-axis. Then it will again 1 by root 3, and it will goes on. There will be infinitely many roots near 0. There will be infinitely many roots but near 0, and it's an even function. It's an even function. That is, in the right of this will be similarly minus 1 by root 2 is the root, minus 1 by root 3 is the root, and it will be like this. Finally,
This is the graph of x square sine of pi by x square. Now let me check the options. Option was fx equal to 0 has infinitely many solutions in the interval 1 by 10 to the power 10 to infinity. It says fx equal to 0 has infinitely many roots in the interval 1 by 10 to infinity. 1 by 10 to the power 10 to infinity. Fx is equal to 0 has infinitely many roots. What are the roots का nature? No roots आए हमारे. Roots are in the form of plus minus 1 by root 10. And this interval is entirely towards positive x-axis. So let me count कि number of roots कितने आएंगे. It is, obviously it must be finite. I can say 1 by root 10 is greater than equal to 1 by 10 to the power 10. For how many values of n? That is, I can say root n is less than equal to 10 to the power 10, more than or equal to 0, in fact strictly more than 1, more greater than equal to 1, that is n is less than equal to 10 to the power 20 and greater than equal to 1. तो आप कह सकते हो कि भाई इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी रूट नहीं है, इस इंटरवल में एक्चुअली में 10 to the power 20 रूट्स हैं. Exactly, because n is a natural number, तो n started with 1, 2, 3 till 10 to the power 20. इतने नंबर ऑफ रूट्स हैं फर्स्ट इंटरवल में, but it says it has infinitely many roots. Second option is fx equal to 0 has no solution in the interval 1 by pi to infinity. 1 by pi to infinity. Next interval of discussion is 1 by pi closed. Was it closed? Yes. 1 by pi to infinity. Okay, let me check. 1 by root 10 greater than equal to 1 by pi. That means I can write over here root n is less than equal to pi. That is n is less than equal to pi square, and is definitely greater than equal to 1, and pi square is approximately 9.8. That means you can clearly see over here n can take only first 9 natural number. Over here it has 9 roots, but it says it has no root. तो इस इंटरवल में आप कह सकते हो इसके 9 रूट्स आ रहे हैं. इस इंटरवल में आई एम गेटिंग 10 to the power 20 रूट्स, तो इसलिए रिजेक्ट हो गया. इट सेज इनफाइनाइटली मेनी. इट सेज नो सॉल्यूशन बट इट हैज 9 रूट्स. Rejected. The set of solution of fx equal to 0 in the interval 0 to 1 by 10 to the power 10 is infinite. But it says number of solution of fx equal to 0 in the interval 0 to 1 by 10 to the power 10 is finite. 0, 1 by root 10, is less than 1 by 10 to the power 10. That is root n is more than 10 to the power 10. Hence n is more than 10 to the power 20. And 10 to the power 20 से n कोई भी वैल्यू ज़्यादा ले सकता है. Hence it has infinitely many roots clearly. तो ये भी आप कह सकते हो कि इसमें आपके it says it has finite roots, finite number of roots, but it has infinitely many number of roots. That is, this is also rejected. Now what is option D? It says fx equal to 0 has more than 25 solution in the interval 1 by pi square to pi, 1 by pi. One by pi square to 1 by pi. It has more than 25 solution. That is, if I write 1 by root 10 is more than 1 by pi square and less than 1 by pi, that is root n is more than pi but less than pi square, and I can say n is more than pi square and less than pi ki power 4. Then by judging the values of pi square and pi to the power, you can clearly see it has more than 25 roots. Clearly pi square is approximately 9.8, and if you compute this, exact value will be 97 point something. So n can take all the values from 10 to 97. So fourth option में you can see n belongs to 10 to 97. So exactly 97 minus 10, 87, 88 roots. Exactly 88 roots. तो ये थोड़ा सा लेंदी था, बट एज एन अगर आप पहले, ये तो मैंने एक्सप्लेन इतना किया है इसमें, तो अगर आप जज करते हैं कि रूट्स ऑरिजिन की तरफ जा रहे हैं, तो कोई भी इंटरवल जिसमें ऑरिजिन इंक्लूडेड है इधर टू द राइट और टू द लेफ्ट, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी रूट्स. एंड अगर कोई भी फाइनाइट इंटरवल या इनफाइनाइट इंटरवल
जीरो के आगे से अगर आप कोई भी फाइनाइट या इनफाइनाइट इंटरवल लोगे, देयर विल बी फाइनाइटली नंबर ऑफ मेनी रूट्स, फाइनाइटली मेनी रूट्स. ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, मल्टी करेक्ट है ये. तो it says let S be the set of all alpha beta belonging to R cross R such that limit x approaches infinity, sine of x square log x to the base e alpha to the power alpha sine of 1 by x square upon x to the power alpha beta ln of 1 plus x to the power beta limit is 0. Then which of the following is or are correct? That is, आपको ये जज करना है कि अल्फा और बीटा जो पेयर है वो अंडर दिस केस -1 3, दैट इज अल्फा अगर -1 ले लें और बीटा को 3 ले लें और मे बी इसमें प्लग इन करें तो क्या लिमिट 0 आ रही है कि नहीं आ रही, बाय टेकिंग अल्फा इज -1 बीटा इज 3. बट एक थोड़ा रेगुलर जज वो करते हैं इसको कि फॉर्म वॉर्म कौन सी है. तो as x approaches infinity, sine of x square is a bounded function. Okay, ln x is a unbounded function, it goes to infinity. Similarly, ln 1 plus x also goes to infinity, and sine of 1 by x square will tend to 0, and over here x tends to infinity. Okay, तो इसको थोड़ा सा ऐसे प्रोसीड करते हैं. Sine of x square is a bounded function. Sine of x square is a bounded function. Okay, now sine of 1 over x square will tend to 0. तो एक काम करते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को रिटेन करते हैं एंड ln x टू द पावर अल्फा रिटेन करते हैं. साइन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर को अगर हम 1 बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दें तो क्लियरली दिस विल टेंड टू 1 और लिमिट एग्जिस्ट करेगी. अगर हम इसको रिमूव भी कर दे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा रिड्यूस कर जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नीचे कितना था एक्स की पावर अल्फा बीटा, एंड आई कैन से कि ये 1 बाय एक्स स्क्वायर जो है ये भी आपका अल्फा बीटा में मर्ज हो जाएगा, तो इट विल बी अल्फा बीटा प्लस 2. क्लियर? एंड ओवर हियर इट इज ln of x plus 1 whole to the power beta. Okay, now let me write sine of x square over x to the power alpha beta plus 2. अच्छा, एक चीज चेक करो कि भाई ये फंक्शन ln x है और नीचे ln of x plus 1 है, तो अगर हम खाली ln x ओवर ln x plus 1 की लिमिट निकालें, ln x ओवर ऑल दो लिमिट्स में इस फंक्शन में पर्टिकुलरली ln x की बात डिफरेंट है और ln x plus 1 की बात डिफरेंट है, मतलब पैरामीटर्स है अल्फा बीटा, तो ln x ओवर ln ऑफ 1 प्लस x, इसकी लिमिट क्या आएगी अगर हम लेके लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी पे, तो दोनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है. इट विल बी ln x विल बी लाइक दिस, ln ऑफ 1 प्लस x विल बी लाइक दिस फाइनली. तो क्लियरली एट एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी इट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. तो अगर हम डायरेक्टली LH से इसका लिमिट कंसिडर करें तो LH रूल के अकॉर्डिंग इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 over x derivative of ln x over 1 over x plus 1, that simplifies to x plus 1 over x, that will tend to 1 as x approaches infinity. तो ln x और ln 1 plus x का बिहेवियर एट इन्फिनिटी विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर. तो आई कैन से कि हम अगर इसमें से ln x को ln x plus 1 से डिवाइड कर दे टू दी पावर अल्फा से, तो I can say over here ln of x to the power ln x plus 1 to the power alpha, and over here ln of x plus 1 to the power alpha. So this will approach to again 1 irrespective of alpha, this will tends to 1. Now I am reduced, my reduced form of this function will be sine of x square by x to the power alpha beta plus 2 times ln of x plus 1 to the power beta minus alpha, and limit x approaches infinity. This is the question. Now, and I want this limit tends to 0. लिमिट की वैल्यू हमें क्या चाहिए 0, और हमें पता है कि ये एक बाउंडेड फंक्शन है बिटवीन -1 to 1. तो इसका मतलब डिनोमिनेटर शुड अप्रोच टू इन्फिनिटी. नाउ इफ आई कंसिडर दिस अल्फा बीटा प्लस 2 जो कि हमारी x की पावर में है, इफ आई कंसिडर अल्फा बीटा प्लस 2, इफ इट इज पॉजिटिव, तो कैन आई से irrespective of beta minus alpha, where beta minus alpha is positive or negative, if alpha beta plus 2 will be positive, then x to the power alpha beta plus 2 will definitely dominate this expression whether in numerator or denominator, because if beta minus alpha is positive, then 2, this will tend to infinity, this will tend to infinity.
If beta minus alpha is negative, this goes to numerator, but still x dominates. X dominates any power of ln x plus 1. That is, in that case, if alpha beta plus 2 is positive, that means this limit definitely tends to 0. If alpha beta plus 2 is positive, that is, this is one case. Alpha beta plus 2 is positive, will give you limit tends to 0. So over here, alpha beta is minus 3. Over here, alpha beta is minus 3. It is not more. Alpha beta plus 2 is negative. Over here, alpha beta is minus 1. Over here, alpha beta is minus 1. Alpha beta plus 2 will be, alpha beta plus 2 will be positive. That means this is pakka answer. B is the answer, because if you take alpha as minus 1, beta as 1, if you take alpha as minus 1, beta as 1, this limit goes to, this limit will be, if you take alpha is minus 1, beta is 1, if you take alpha is minus 1, beta is 1, this question will be sine of x square over, if alpha is minus 1, beta is 1, the alpha is minus 1, beta is 1, this will be x, ln of 1 plus x to the power. If alpha is minus 1, beta is 1, this will be 2, and x tends to infinity, ln 1 plus x also tends to infinity, numerator is bounded, the limit will be definitely 0. This is the answer. Similarly in the second case, third case, over here alpha beta is again minus 1, hence alpha beta plus 2 is positive. This is also the answer. This is also the answer. What if alpha beta is minus 2? That is alpha beta. What if alpha beta is equal to minus 2? Over here in option D, we have alpha beta is minus 2. So if alpha beta is minus 2, then the question reduces to limit x tends to infinity, sine of x square, which is a bounded function. Denominator में आपका अब ये x की पावर alpha beta plus 2 will be 1, and I'm just left with sine ln of x plus 1 to the power beta minus alpha, under the case when alpha beta is minus 2. And in that case, this limit will tend to 0 provided denominator tends to infinity. And in that case, we must have beta minus alpha will be positive. I need beta minus alpha to be positive under the case when alpha beta is minus 2 for limit to tend to 0. Because in that case, if beta minus alpha is positive, denominator will tend to infinity and this overall limit goes to 0. What if beta minus alpha is negative or 0? If 0, definitely limit does not exist, and if beta minus alpha is negative, then this term goes to numerator, which is tending to infinity. Hence, I can say limit will be, again, does not exist. It will be either positive infinity or negative infinity. So for alpha beta equal to minus 2, beta minus alpha must be positive. But I think in option D, if alpha beta is minus 2 over here, beta minus alpha is negative. Beta minus alpha is negative, hence I can clearly say answer is not D. Okay. तो ये थोड़ा सा एनालिसिस का क्वेश्चन था जिसमें आपको बेसिकली दो पैरामीटर अल्फा बीटा जज करने थे बेस्ड ऑन द गिवन लिमिट. लिमिट की वैल्यू 0 दी हुई थी और बाकी आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का और एक्स का मिक्स फंक्शन दिया हुआ था. Okay, moving on to question number 6. It says a straight line drawn from the point 132 parallel to this line intersects the plane this. चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा ही है आई थिंक. So straight line drawn from point P132. So what is the equation of line passing through P132? It will be x minus 1, y minus 3, z minus 2. Symmetric form में लिखते हैं और upon में it is parallel to the given line. Hence direction ratio of the given line is the direction ratio of the over line, that is 1, 2, 1. Okay, it intersects the given plane at point Q. तो पहले काम करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालते हैं टेकिंग जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन एज लैम्डा पॉइंट, दैट इज लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 2 और इसी पॉइंट को हम मान लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट एज क्यू. तो इफ दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट विद द गिवन प्लेन, दिस पॉइंट डेफिनेटली लाइज ऑन द गिवन प्लेन. तो इसको सेटिस्फाई करो उसमें. तो आई विल गेट एक्स लैम्डा प्लस 1 माइनस वाई, दैट इज माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 and plus 3z. तो plus 3 lambda plus 6 equals 6. देखो क्या आ रहा है लैम्डा की वैल्यू
I think 2 lambda minus lambda plus 3 lambda is 2 lambda. Over here it is 1 minus 3 minus 2 is equal to 2. That is lambda comes out to be 1. Hence I can say coordinates of Q comes out to be 2, 5 and 3. 2, 5, 3. Another straight line which also passes through Q, that is एक और line जा रही है जो Q से pass कर रही है, and it is perpendicular to the given, is perpendicular to the plane L1, intersects the plane this, is perpendicular to the plane L1. तो मतलब जो हमारा plane है उसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो मतलब प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे. तो प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन क्या है? 1, -1 एंड 3. तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई जो क्यू से पास कर रही है और जिसके डायरेक्शन रेशियो 1, -1, 3 है. सेकंड लाइन इट विल बी x - 2 by 1, y - 5, y - 5 by -1 and z - 3 by 3. और ये एक और प्लेन L2 को इंटरसेक्ट कर रही है एट R. ओके, लेट मी टेक द जनरल पॉइंट ऑन दिस. बेसिकली रिपीट टास्क हो रहा है वही वाला. पहले हमने एक गिवन लाइन को पहले प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कराया था, अब हम एक और लाइन को अनदर सेकंड प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करा रहे हैं. प्लेन इज L2. तो जनरल पॉइंट ओवर हियर इज μ+2 और इस पॉइंट का नाम लेबल दिया हुआ है R. तो लेट मी टेक दिस एज R. μ+2 5 minus μ एंड ओवर हियर 3μ+3. और इसको अप्लाई करा दो प्लेन 2 पे, दैट इज लाइन L2 पे. तो इट विल बी 2μ+4 2x -y -5 + μ + z +3μ+3 इक्वल्स -4. चेक करो क्या आ रहा है म्यू की वैल्यू. इट इज 3μ + 3μ 6μ. और कांस्टेंट कितना आ गया आपका भाई? 4 - 5 -1 -1 + 3 2 इट इज इक्वल टू -6. आई थिंक आई एम गेटिंग म्यू एज -1. तो आपके आर के कोऑर्डिनेट आपके आ गए फाइनली. सब्स्टिट्यूटिंग -1 ओवर हियर इट इज 1 -1 इट इज 6 एंड -3 + 3 आई थिंक 0. ओके, तो हमारे पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे 132, क्यू के आ चुके हैं हमारे. क्यू के आए हैं 253, पी के दिए हुए थे 132 एंड आर के 160. तो फाइनली अब पूरा क्वेश्चन इन 3 पॉइंट्स पे बेस्ड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो आप पी क्यू की लेंथ निकाल ही लोगे. पी क्यू की लेंथ क्या आ रही है? पी क्यू की लेंथ, पी क्यू वेक्टर आ रहा है आपका आई थिंक 1 i कैप 5 - 3 + 2 j कैप एंड 3 - 2 k कैप. तो आई थिंक पी क्यू की लेंथ आ गई आपकी रूट ऑफ 4 + 1 5 + रूट, इट इज 6 √6. व्हाट इज लेंथ ऑफ क्यू आर? ओके, तो आपके कुछ ऑप्शन तो आई गए. आई थिंक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज 160, तो बी इज इनकरेक्ट. ओके, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का सेंट्रॉइड क्या रहा है? पी क्यू इज √6, ये ट्रू है. लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज √6. द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी व्हाट इज P + Q + R by 3. तो ये कितना आ जाएगा भाई? P + Q + R by 3. 1 + 2 3 3 + 1 4 4 by 3. x की वैल्यू, y का सम सिग्मा y क्या आ रहा है? 3 + 5 8 + 6 14 by 3 एंड 2 + 3 5 + 0 5 by 3. तो आई थिंक C is also correct. एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, तो हमने PQ की लेंथ निकाली ली थी. QR और PR की लेंथ भी आप चेक कर लो क्या आ रही है. PR आ रहा है आपका √of PR, that is √0 plus 6 - 3 3 square is 9 plus I think 4 √13. PR 0 plus 9 plus I think 4 √13. And what is QR? So anyway, I don't think this is the answer. QR will be √1 and 1
एंड आई थिंक 9 √11। तो आपका डी भी इनकरेक्ट है, आंसर की इज ए एंड सी। तो एक बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन 3D का। Seventh question, it says A1, B1, C1 be the 3 points in xy plane. Suppose that the lines A1, C1 and B1, C1 are the tangents to this curve. Y square is equal to 8x. तो पैराबोला कौन सा है? राइटवर्ड। y square is equal to 8x, मतलब आपका A is 2, okay, and A1, B1 और C1 पॉइंट दिया हुआ -40 समवेयर हेयर, और कह रहे -40 विच इज अ पॉइंट C1, और उससे आपने टेंजेंस ड्रॉ करी है विच टचेस द पैराबोला एट A1 एंड B1। तो मतलब एक यहां जा रही होगी A1 और एक सिमेट्रिकली आपकी यहां आ जाएगी B1, और डेफिनेटली A1 B1 जो आएगी आपकी लाइन वो आप क्लियरली चेक कर सकते हो, क्योंकि C1 हमारा एक्सिस सिमेट्री पे डला हुआ है, तो डेफिनेटली A1 B1 आपकी y एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाएगी, डबल ऑर्डिनेट फाइनली। तो आपके पास चॉइस है, बेसिकली आपको सारे कोऑर्डिनेट निकालने, तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। यू मे गो विद A1 की पैरामीट्रिक फॉर्म 80² 280, उस पे टेंजेंट की इक्वेशन को आप -40 से पास करा दो, आपका टी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, A1 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। -40 के रिस्पेक्ट में आप इस लाइन को बोल सकते हो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख दो -40 की पैराबोला के रिस्पेक्ट में। आई थिंक उसी से स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखो, व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? इट विल बी y square is replaced by y1, 0y is equal to 4 time x, 2x is replaced by x plus x1, that is x minus 4, hence I can say x is equal to 4। ये आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, x is equal to 4, that means this point is 4 0। what about a1? a1 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? a1 का एब्सिसा तो 4 ही हो जाएगा, 4 एंड गेट y 32 का रूट ऑफ 32, 4√2, तो y will be 4√2 and b1 similarly will be 4, -4√2। तो बस आपको सिंपल अब चेकिंग करनी है, व्हाट इज OA1? OA1, ओके, O इज ओरिजिन, यस, O इज ओरिजिन। व्हाट इज O जॉइनिंग A1? OA1 की बस लेंथ ही निकालनी है, OA1 लेंथ, तो OA1 लेंथ विल बी योर रूट ऑफ 16 plus 32, that is √48, that is 4√3, 4√3 units, that is A is correct, A is correct। What about length of segment A1 B1? A1 B1, A1 B1 will be आपकी simply 8√2, B is rejected। C, orthocenter of triangle A1 B1 C1, orthocenter, okay, orthocenter of triangle A1 B1 C1, तो क्लियरली C1 से A1 B1 पे जो परपेंडिकुलर वो तो x एक्सिस ही है, और सिर्फ वेरीफाई कर लेते हैं डायरेक्टली कि क्या ऑरिजिन ज्वाइनिंग A1 की जो लाइन आ रही है क्या वो एक्सटेंड होके B1 C1 पे परपेंडिकुलर है। तो OA1 का स्लोप निकालो, क्या आ रहा है? व्हाट इज OA1 का स्लोप? OA1 का स्लोप, OA1 का स्लोप आ रहा है आई थिंक 4√2 - 0/4, आई थिंक इट इज √2। एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ B1 C1? व्हाट इज स्लोप ऑफ B1 C1? तो B1 C1 का स्लोप आ रहा है आई थिंक -4√2 - 0 -4√2 over 4 plus 4 8, तो इट इज कमिंग आउट टू बी आई थिंक -1/√2। देखो चेक करो, 4 to 8, हाँ -1/√2, तो क्लियरली प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स कम्स आउट टू बी -1। तो आप कह सकते हो यार C1 का से परपेंडिकुलर x एक्सिस था, A1 से जो परपेंडिकुलर ऑन B1 C1 गिरेगा दैट इज आल्सो पासिंग थ्रू O, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर विल बी नथिंग बट ओरिजिन, तो ओरिजिन इज द ऑर्थोसेंटर। तो आपका आंसर आ गया A एंड C, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन सबका होना चाहिए था। 8th सेक्शन 3, फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R, be a function defined as f of x plus y equal to fx plus fy for all x y belonging to R, g is a function from R to 0 to infinity, g of x plus y equal to gx into gy। तो फंक्शनल इक्वेशन में जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक फंक्शन लर्न करने के लिए बोलते हैं वही वाले फंक्शंस आई थिंक दिख रहे हैं कि समेशन पे आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनपुट को, मतलब
इनपुट पे फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है. सिमिलरली ओवर हियर सम गोज टू प्रोडक्ट. तो आई कैन से एफ ऑफ एफ फंक्शन इज सपोजिटली a linear function passing through origin mx. fx must be mx. तो ये अपने स्टैंडर्ड फंक्शन थ्योरी के दौरान लर्न करे होंगे. fx is mx which satisfies this equation f of x plus y equal to fx plus fy. And g supposedly must be कि आपको याद करो कौन सा था कि सम को प्रोडक्ट में कौन सा कन्वर्ट करते हैं. तो लर्न है आपको शायद प्रोडक्ट टू सम होता था लोगैरिथमिक फंक्शन. तो ये सम ऑफ इनपुट्स को प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन पे रिप्लेस कर रहा है. तो इट हैज टू बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन. It is something like a to the power x, and clearly that also justifies our the given codomain, that is a to the power x, and let me take a to be a positive value. तो दोनों ही फंक्शनल इक्वेशन आपकी, नहीं तो आप डिराइव भी कर सकते हो बाय गोइंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कि f फंक्शन आपका mx आ जाएगा और g फंक्शन आपका a to the power x आ जाएगा. तो बस अब आपको पास दोनों फंक्शन स्टैंडर्ड लर्न है आपके. अब आपको उसने दो बाउंड्री वैल्यू दे रखी है टू गेट द वैल्यूज ऑफ m and a. What is f of minus 3 by 5? F of minus 3 by 5 will be minus 3 by 5m, and this is given to be equal to 12. तो m कितना आ गया? m आ गया आपका I think minus 20. Okay? हाँ, minus 20. And g of minus 1 by 3. G of negative 1 by 3 is a to the power negative 1 by 3. And it is given to be equal to 2. That implies a, if I raise minus 3 both side, I'll get a as 2 to the power minus 3, that is 1 by 8. Okay, so what is f of 1 by 4? F of 1 by 4 will be m into 1 by 4, that is minus 20 times 1 by 4, that is minus 5. And what is g of minus 2? G of minus 2 will be 1 by 8 to the power minus 2. 1 by 8 to the power minus 2 will be 64. And g of 0 will be 1. That is, the answer will be f of 1 by 4 is minus 5 plus a g of minus 2 will be 64 and minus 8. That comes out to be our 64 minus 5 is 59. It is coming out to be 51. Hmm. 51 is the answer. तो अगेन बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन, बिल्कुल सबका हुआ होगा ये क्वेश्चन, इसमें कोई चांस ही नहीं है कि किसी का ना हुआ हो. Okay, probability, a bag contains n balls, out of which 3 balls are white, 6 balls are green, and the remaining balls are blue. Okay. It has n balls. It says 3 balls are white, 6 balls are green, and remaining must be n minus 9 blue. Okay, it assumes that all the balls are identical otherwise, that सारे के सारे कलर के अलावा सब कुछ identical है, weight, size जो भी, and 3 balls are drawn randomly one after the other without replacement. तो पहले आपने एक निकाली, फिर without replacement second निकाली, फिर आपने third निकाली. First ball, second ball, third ball. Okay, it says Wi, Gi, Bi denote the event that the ball drawn at ith draw is white ball. That is, W1 denotes first drawn ball is white. W2 denotes event that the second drawn ball is white. And similarly, G1, G2, G3, B1, B2, B3. Okay. So, with the probability that is first drawn is white, intersection, second drawn is green, intersection, third drawn is blue, is given to be equal to 2 over 5n. And another conditional probability is also given, probability B3 given W1 intersection G2. W1 intersection G2 is given to be equal to 2 by 9. So I think let me start with this conditional probability. Conditional probability में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको what is the probability that the third drawn ball is blue given that first drawn is white and second drawn is green. तो इस पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं probability x conditional y का, probability x intersection y, probability B3 intersection second event, that is W1 intersection G2,
by probability W1 intersection G2 is given to be equal to 2 by 9. And what is probability B3 intersection W1 intersection G2? I think this is the same event as this event. Probability B3 intersection W1 intersection G2, ये इवेंट आ गया आपके. तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा आपका 2 by 5n over what is probability W1 intersection G2, that is first drawn is white and second drawn is green, so they are just independent event. So what is probability W1? First drawn is white. First drawn is white will be 3. First drawn is 3 over n times. Second drawn is green. Second drawn is green. That means green intact है. Green का count कम नहीं हुआ 6 upon and total count कम हो गया आपका n-1. And this is given to be equal to 2 over 9. तो solve करो भाई. तो I think n cancels. Now 2 over here cancels. I am left with, I think, n-1 over 3 into 5 into 6. 3 into 5 into 6 equals 1 by 9. So I think 3 get cancelled, 6 get cancelled. That is n-1 comes out to be 10. So n comes out to be 11. तो n की वैल्यू आ गई भाई. n निकालना था. I think n is equal to. The answer for this question will be 11. तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन. और ऑब्वियसली इस n के लिए जिस सेटर ने ये कंफर्म कर लिया होगा कि ये वैल्यू कंसिस्टेंट है, मतलब इस लाइक कि अगर n 11 ले रहे हैं तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 2 by 55 आनी चाहिए. तो आप चेक करके देखना कि वेदर टेकिंग n as 11 probability of W1 intersection G2 intersection B3 is it coming out to be 2 by 55 or not, although I have not verified this. Okay, question 10. It says function f is from R to R defined by this number of solution of fx equal to 0. तो again मतलब एक अगेन नंबर ऑफ रूट्स का एक रिपीट क्वेश्चन, जैसे पहले भी कई सारे रिपीट नंबर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं. तो अगेन एक नंबर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन. तो सिर्फ रूट्स जज करने हैं, दैट टू कि आपको इसमें देखने में बहुत मतलब सेम टर्म, मतलब इट्स लाइक कि ऐसा लग रहा है देखने में कि क्या पता कुछ एरर रह गया कि सेम टर्म उसने यही डिनोमिनेटर सेम यहाँ पे एंड सेम डिनोमिनेटर है बिल्कुल. और दैट टू कि न्यूमरेटर में भी ये वाला फैक्टर एज इट इज एग्जैक्टली सेम है फाइनली. तो एफ एक्स जो यहाँ पे आएगा आपका, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो एफ एक्स क्या आ गया, आई कैन से साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 होल अपॉन e to the power pi x times x square minus x plus 3. ये हमने सिंपली दोनों टर्म्स को क्लब कर दिया. अच्छा, और क्योंकि हमें सिर्फ रूट्स को जज करना है तो मेरे को इसके रूट्स में इंटरेस्टेड है. एंड इसमें भी जो आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर्स है, दैट इज साइन एक्स प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में आपका e की पावर पाई एक्स एंड दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. इज इट कि दोनों तीनों के तीनों फंक्शन पॉजिटिव है. e की पावर पाई एक्स इज अ पॉजिटिव फंक्शन एंड दिस क्वाड्रेटिक हैज d नेगेटिव, hence this is also positive and sin x plus 2 is also positive because sin x की लीस्ट वैल्यू क्या होगी -1. तो इसकी लीस्ट वैल्यू sin x plus 2 की 1 है. तो एक्चुअली में अगर हम इन तीनों टर्म्स को ड्रॉप भी कर दें फॉर द सेक ऑफ रूट्स तो इससे हमारे रूट कोई लॉस नहीं होगा और डोमेन भी सेम ही रहेगा, डोमेन में भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो रूट्स ऑफ fx equal to 0 is equivalent to roots of this, simply this polynomial equation is equal to 0, that is x to the power 2023 plus 2024x plus 2025 is equal to 0. तो fx is equal to 0 is same as this equation is equal to 0 और आपको सिर्फ इस इक्वेशन के रूट्स को जज करना है. तो अगर मैं इसको gx बोल दूं, ये gx है, इट्स अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, इट मस्ट बी अगेन कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन इन आर. तो इस इक्वेशन के रूट्स जज करने हैं कि नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे. नंबर ऑफ रूट्स, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो आप देख सकते हो यार कि इस पूरी इक्वेशन में डिग्री ऑड है, तो मतलब एक रूट तो पक्का रियल आएगा, नंबर ऑफ एक रूट तो पक्का रियल आएगा क्योंकि इमेजिन रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर विद रियल कोफिशिएंट. तो अगर हम gx इज इक्वल टू 0 के रूट्स की बात करें और gx आपका ये एक्सप्रेशन है, तो इट इज g डैश x
g dash x comes out to be 2023 x to the power 2022 plus 2024 and this is 0. तो हम बहुत सारे रिजल्ट्स के टाइम इसके लिए करते हैं कि भाई यहाँ पे सारे पॉलिनोमियल्स में सारे क्वेश्चन पॉजिटिव हैं, तो इट डज नॉट हैव पॉजिटिव रूट. फर्दर एक्स की जो पावर्स इन्वॉल्व हैं टर्म्स में वो भी सारी ऑड है. 2023 यहाँ पे 1 थी, तो फाइनली डेरिवेटिव में आपकी सारी इवन पावर्स आ रही हैं 2022 और एक्स की पावर 0 विद पॉजिटिव कोफिशिएंट. तो क्लियरली आई कैन से जो जी डैश एक्स आ रहा है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल एक्स. फॉर एवरी रियल एक्स जी डैश एक्स विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ डेफिनेटली एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा और जो इसका रूट आएगा दैट मस्ट बी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस बिकॉज इट कैनॉट हैव पॉजिटिव रूट. इट विल बी लाइक दिस. इट विल बी लाइक दिस. तो इसका एक रूट जो आएगा वो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा और आपको सिर्फ नंबर ऑफ रूट्स कमेंट करने थे. तो एग्जामिनर और बहुत कुछ पूछ सकता था इस पे कि रूट की लोकेशन मतलब वो -1 -2 के बीच में या कुछ और भी एनालाइज करा सकता था फाइनली. तो खैर एनीवे अभी तो हमारे को सिर्फ नंबर ऑफ रूट जज करने एग्जाम के लिए. तो नंबर ऑफ रूट्स इज 1. तो क्वेश्चन देख के बिलीव ही नहीं हो रहा कि इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बारी. अगेन वेक्टर का रेगुलर सा क्वेश्चन बिल्कुल कि p वेक्टर दिया हुआ है, q वेक्टर दिया हुआ है एंड p और q के लीनियर कॉम्बिनेशन पे उसने एक राइट साइड का वेक्टर एक फिक्स वेक्टर के इक्वेट किया हुआ है 15 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 6 k कैप. तो वन पॉसिबल विल बी आप p और q के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको p और q की वैल्यूज दी हुई हैं वेक्टर p एंड वेक्टर q की, ये जो वेक्टर p की और वेक्टर q की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे प्लग इन कर दो p 2p प्लस q में p माइनस 2q में एंड p क्रॉस q में और आप दोनों साइड्स के कोफिशिएंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ij के इक्वेट करा दो. ये एक पॉसिबिलिटी है. तो आपको एग्जैक्टली अल्फा बीटा गामा के ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे. बट आपको ये चीज नोट करनी चाहिए थी कि हमें सारे नहीं निकालने, हमें सिर्फ गामा में इंटरेस्टेड है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा. तो अगर हमें गामा पे फोकस करना है तो क्लियरली अगर हम जो गिवन इस वेक्टर के साथ जो कोफिशिएंट मेंशन है और इस वेक्टर के साथ जो कोफिशिएंट मेंशन है अगर हम इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करके इस पूरी इक्वेशन को डॉट कर दें, दैट इज अगर हम इन दोनों को क्रॉस करके डॉट करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ड्रॉप कर जाएगी और इन दोनों का जो क्रॉस आएगा दैट मस्ट बी p क्रॉस q ओनली. p क्रॉस q ओनली. तो आई एम टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद p क्रॉस q बोथ साइड. आई एम टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद p क्रॉस q बोथ साइड. तो p क्रॉस q वेक्टर का डॉट अगर हम करते हैं लेफ्ट साइड पे भी p क्रॉस q डॉट over 15 i cap plus 10 j cap plus 6 k cap. So can I say the first term will be 0 because it will be alpha times 2p dot p cross q, that will be scalative product of p p q. Next term will be q dot p cross q, that is also 0. Second term is also 0. So it is alpha into 0 plus beta into 0 and I'm just left with gamma and that too p cross q dot p cross q, that will be nothing but modulus of p cross q whole square. गामा की वैल्यू आ जाएगी और p क्रॉस क्यू आप ऑब्टेन कर लो. व्हाट इज p क्रॉस क्यू? p क्रॉस क्यू इज i कैप j कैप k कैप components of p 2 1 3 q 1 minus 1 1. So it comes out to be I think 4 i cap 3 minus 2 plus j cap and minus 2 minus 1 minus 3 k cap. Okay, now what is this p cross q dot 15 i cap plus 10 j cap plus 6 k cap? It will be 4 into 15 60, then plus 10 and minus 3 into 6 minus 18 and right side पे क्या आ जाएगा gamma time magnitude of p cross q whole square, that will be 16 plus 1 plus 9 and gamma simplifies to 60 plus 70 this will be minus 8, so 52 over and this will be I think 26, so this simplifies to 2. तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई 2. Okay, now moving on to next question, 12th question. It says a normal with slope 1 by root 6 is drawn from the point 0 minus alpha to the parabola. Okay, conic section का question parabola based. पैराबोला पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा है, x square is equal to -4a by
तो इट इज अ आपका डाउनवर्ड पैराबोला x square is equal to minus 4ay. A is positive. Okay, and it says there is a point 0 minus alpha from which a normal is drawn with slope 1 by root 6. Okay, let me take somewhere here 0 minus alpha is the point जिससे 1 by root 6 के स्लोप की एक नॉर्मल ड्रॉन है 1 by root 6 के स्लोप की. Okay, now let L be the line passing through 0 minus alpha and parallel to directrix of the parabola. डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगी y is equal to a. तो आपने 0 माइनस अल्फा से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स दैट मस्ट बी अगेन डबल ऑर्डिनेट एंड L इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 points A and B. So I think let R denote the length of the later sectum and S be the denote the square of the length of the line segment AB. Okay, again a regular question. तो पहले स्टार्ट करने के लिए अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉन है जो 0 माइनस अल्फा से पास कर रही है अगर उसके कोऑर्डिनेट हम क्या ले लें पैरामीट्रिक फॉर्म में तो दिस पॉइंट विल बी क्या लिया जाए 280 कॉमा -80 स्क्वायर. तो इस पॉइंट पे आपकी नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा अगर हम वाई डैश निकालेंगे dy by dx विल बी -280 by 2a. तो इट इज कमिंग आउट टू बी -t. टेंजेंट का स्लोप होगा -t पैरामीटर -t और नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा आपका 1/t. तो 1/t इज इक्वल टू 1/√6. 1/t over here is equal to 1/√6. तो t comes out to be √6. ओके, तो आपको एक्चुअली में इसका वो मिल गया कोऑर्डिनेट जिस पे नॉर्मल ड्रॉन हुई है और r क्या दिया हुआ था r इज द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम एंड s डिनोट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ r. ओके, तो नॉर्मल का स्लोप आ गया आपका 1/√6. तो इक्वेशन हो गई आपकी x माइनस √6y इज इक्वल टू आपका √6 अल्फा and this is passing through if t is √6 2a √6 this is passes through 2a √6 and -6a. इससे पास करा दो इसको तो आई थिंक I'll get 2a √6 -6 √6a तो -√6a पास तो कर ही रही है. हमें करना क्या एग्जैक्टली हमें करना है एक दिया हुआ लेट आर बी डिनोट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है आर इज 4a एंड व्हाट इज एस आर इज टू एस इज 1:16. ओके, तो एक अल्फा ए में रिलेशन आ गया हमारे पास अल्फा ए में. तो इससे अगर हमने पुट कराया 2a √6 माइनस 6a इंटू 6√6a तो इट इज equal to √6 alpha. So I think if I cancel this √6, so alpha comes out to be -4a. Alpha is -4a. हमने इसको पास करा दिया 2a √6 -6a. तो -6a से जब इसे पास कराया 2a √6 minus √6 into 6a तो -6 √6a is equal to 6 √6 alpha. √6 get cancelled and I'm left with alpha equals -4a. Alpha over here is -4a. Then this point is पैरामीट्रिक फॉर्म मैंने सही लिया. x is 80 square तो x is 280 y is -80 square. Okay, -280 over 2a minus t is the slope of tangent 1/t slope of normal 1/t slope of normal. तो मैंने इसको 1/√6 के इक्वेट किया अलग t equal to √6 t equal to √6 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आया आपका 2a √6 and -6a 2a √6 -6a that is correct.
एंड नॉर्मल की इक्वेशन आ गई आपकी, इफ स्लोप इज 1 by root 6, it is 1 by root 6, 1x minus root 6y is equal to 0 minus alpha, that is root 6 alpha. ओके, और इसको हमने पास करा दिया 2a root 6 से, 2a root 6 minus 6a, minus 6a. ओके, माइनस 6a, minus 6a, it is plus 6 root 6 है, sorry. तो over here I get root 6 get cancelled, alpha is 8a, sorry. तो over here alpha will be nothing but 8a, alpha is 8a. ओके, तो अल्फा और ए में रिलेशन आ गया, तो दिस पॉइंट इज 0, minus 8a. तो इट इज r is to s, r क्या दिया हुआ था, r is mentioned as, r is denote the length of the latest rectum, that is 4a. s denotes the square of the line segment AB. तो आई थिंक s डिनोट कर रहा है AB का स्क्वायर. तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0, माइनस अल्फा, 0 minus 8a. तो मतलब हमारा y minus 8a है. तो y को अगर हम पैराबोला में minus 8a डाल दें तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, minus 8a, minus 2 minus plus 32a स्क्वायर. तो हमारे इसके a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे रूट 32a, रूट 32a, minus 8a. तो पूरा डबल ऑर्डिनेट ए बी की लेंथ आ जाएगी, ए बी का स्क्वायर ही करना है एनीवे. तो आई थिंक इट इज 2 रूट 32, 2 रूट 32a. तो 2 रूट 32a स्क्वायर यार है. तो आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी 128a स्क्वायर. तो इट इज 4a over 128a स्क्वायर, इट इज 1 by 32a. 1 by 32a is given to be equal to 1 by 16. So a is 1 by 2. A comes out to be 1 by 2 and 24a will come out to be 12. 24a comes out to be 12. तो आई थिंक मैंने बीच में कहीं पे गुफ अप कर दिया, उसकी वजह से थोड़ा लंबा हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. Okay, now look at this 13th question. It says let function f be from 1 to infinity to r be defined by piecewise. और piecewise में definition कैसे mention है, when t is odd natural then ft is like this, and when t is between two consecutive odd natural ft will be like this. तो अगर हम इसका थोड़ा behavior देखें, let me take n as 1. What if n is a natural number 1? So this definition says when n is 1, t will be equal to 1. That is, what is f of 1? F of 1 will be, because if n is 1, t in first definition, t will be 1. So f of 1 will be minus 1 to the power n is 1, 1 plus 1, 2 times 2. So it comes out to be 2. Similarly, by second definition, if n is 1, by second definition when n is 1, t is between 1 to 3. Then let me compute what is f of t for all values from 1 to 3. F of t will be, I have taken n as 1, so it will be 2 plus 1, 3 minus t by 2 times f of I think 1 plus t minus 1. I have taken n as 1 upon 2 f of 3. Now what is f of 3? F of 3. For getting f of 3, for finding f of 3, we need n as 2. If you let n as 2, t will be 3. F of 3 will be, by first definition, it will be equal to minus 1 to the power 2 plus 1, that is 3 times 2. It will be minus 2. Okay, this will be 3 minus t by 2. F1 was 2 plus t minus 1 by 2. F3 comes out to be, I think, minus 2. Now simplify this. I think 2 gone. ये कितना आ रहा है, 3 minus t minus t plus 1. I think 4 minus 2t. Okay.
तो अगर हम f का ग्राफ स्केच करें तो t की हमने अभी लीस्ट वैल्यू कंसिडर करी है 1, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे f1 comes out to be I think 2, f1 comes out to be 2, and at t equal to 3, f3 comes out to be minus 2, f3 comes out to be minus 2, and in between 1 and 3, if t is between 1 and 3, we get ft is equal to 4 minus 2t. So you can see by taking ft as 4 minus 2t, it will join these 2 points, because at 1 it will be 2, at 3 it will be 4 minus 6, that is minus 2. तो बेसिकली आप इसको ज्वाइन कर दो, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया f का, 1 पे 2, 3 पे माइनस 2, और ये एक्चुअल में कट कहाँ पे करेगा, इसका रूट क्या आ रहा है, आई थिंक 2 पे ही आ रहा है, तो ये 2 पे कट कर जाएगा, 2 पे, तो ये -2 स्लोप की लाइन आ गई बिटवीन 1 एंड 3. ऑन द सिमिलर मैनर लेट मी फाइंड व्हाट इज f5, बिकॉज फर्स्ट डेफिनेशन सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स पे आपको आउटपुट दे रही है, और f5 निकालने के लिए आपको n को क्या लेना पड़ेगा, लेट मी टेक n as 3. If n is 3, t will be 5, f5 will come out to be -1 to the power 3 plus 1, that is 4 times 2, it again comes out to be 2. तो आपका f5 आ रहा है again 2, और when n is 3 by second definition it will be, when n is 2 by second definition, for n equal to 2 by second definition, t will be lying between 3 to 5, and let me compute this. f of t will be n is 2, it will be 4 plus 1, 5 minus t by 2 times, and at 2 it will be f of 3 कितना था, f of 3 था हमारा -2 plus t minus n I have taken as 2, so it will be 3, t minus 3 by 2 into f of 5 was I think 2, so it is again, I think it will be -5 plus t minus 3, so I think it is 2t minus 8. तो अगर आप चेक करो 2t minus 8, तो t इक्वल टू 3 पे आपकी वैल्यू आएगी -2, और 5 पे इट विल बी 5 to the 10 minus 8, इट विल बी 2. तो एक्चुअली में ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, और फिर ये कट कर रहा है 4 पे, एंड इट कीप्स ऑन दिस. पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये ऐसी पैटर्न चलता रहेगा, एंड तो अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो 5 से 7 में ऐसे आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट 6, और 6 से यहाँ पे कट करेगा इस 7 पे, और 8 तक ऐसे चला जाएगा, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, और 8 यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके, नाउ व्हाट इज gx is defined to be इंटीग्रल 1 to x ft dt. मतलब जिसका आपने भी ग्राफ बनाया fx का, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें 1 से लेके किसी x तक, वेयर x इज बिटवीन 1 to infinity, तो gx का ग्राफ क्या डिनोट करेगा, बेसिकली व्हाट इज g1 विल बी 0, g of 1 विल बी 1 to 1 ft dt, g of 1 विल बी 0, एंड इनफैक्ट हमें g1 डिफाइंड नहीं है, ऑल्दो 1 पे लेना नहीं है, तो g1 विल बी 0. अदरवाइज अगर हम 1 से आगे की कोई वैल्यू लेंगे x की वैल्यू, तो आपको रियलाइज होगा कि यार 1 से लेके अगर आप x तक इंटीग्रेट करोगे, तो 1 से लेके x तक का जो इंटीग्रल आएगा वो ये सारा आएगा. तो इनिशियली 1 से लेके किसी भी, जैसे अगर आपने कहा x की वैल्यू 1.1 ली, तो 1.1 तक इंटीग्रल करोगे तो एरिया बढ़ेगा, 1.2 तक फर्दर बढ़ेगा, तो 2 तक पीक लेगा. तो अगर हम साथ साथ gx का ग्राफ बनाएं 1 से 2 में इट स्टार्टेड विद 0 एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. 1 पे डिफाइंड नहीं है बट टेंड्स टू 0, 1 प्लस पे g1 प्लस विल टेंड टू 0, और 2 पे ये पीक ले लेगा. 2 से आगे जब आप g को फर्दर इंक्रीज करोगे, मतलब आप 2 से फर्दर इंक्रीज करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि अब ये एरिया पीक आने के बाद, एरिया पीक पे पहुंचने के बाद
अब कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि 2 से 3 में ग्राफ नेगेटिव है, तो आपका एरिया 2 तक मैक्सिमम होगा, उसके बाद कम होना शुरू होगा। और आई थिंक क्योंकि सिमेट्रिकल है, आई थिंक 2 से 3 के बीच में जितना एरिया 1 से 2 में बाउंड हुआ होगा, 2 से 3 में उसका बिल्कुल नेगेटिव होगा, तो इट विल गो टू 3 पे कट कर जाएगा एक्स एक्सिस को। G3 विल बी 0 क्योंकि G3 मीन्स 1 2 3 FTDT और 1 2 3 का इंटीग्रल विल बी नथिंग बट 0। सिमिलरली जब मैं 3 से आगे बढ़ाऊंगा, 3 से आगे बढ़ाऊंगा तो अब ऑलरेडी मेरा G3 0 हो चुका है, मतलब 1 से 3 का इंटीग्रल 0 हो चुका है, और अब आगे का इंटीग्रल क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो इट विल गो लाइक दिस, 3 to 4 पे ये मिनिमम लेगा एंड 5 पे आके वापस 0 हो जाएगा। 3 to 4 में यहाँ तक का 0 हो गया, अब हमारा नेगेटिव में इंटीग्रेशन आनी शुरू होगी एंड इट गोज लाइक दिस टिल 5 to 6, 5 to 7 will be like this, 5 to 7 will be like this, and 7 to 8, 7 तक का 0 हो चुका है, 7 to 8 will be similar to जो हमारा 3 to 4 में था, 3 to 4 में it will be like this, this is 8. So this is the graph of gx and you need to find the value of g roots of number of roots of gx is equal to 0 in the interval 1 to 8. तो gx के रूट्स कितने आ गए, 1 से ओपन 8 में, क्लोज्ड 8 में इट इज g3 0, g5 is 0, g7 is 0, g3, g5 and g7 all goes to 0. तो नंबर ऑफ रूट्स तो आ रहे हैं आपके 3, दैट इज अल्फा डिनोट्स 3, अल्फा 3 आ रहा है, and what is beta? It is simply limit x approaches 1 plus, it is limit x approaches 1 plus of gx over x minus 1. So what is g of 1 plus? G of 1 plus will be tending to 0 and denominator is also 0, so I can say it is simply limit x approaches 1 plus g dash x over 1 by using LH. So what is g dash x? We will say g dash x will be nothing but fx. G dash x will be nothing but fx. So what is this? This is f of 1 plus. So what is f of 1 plus? F of 1 plus will be nothing but 2. So this limit tends to 2. तो बीटा आपका 2 आ रहा है और अल्फा 3 आ रहा है, hence the answer is 5. तो ये एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था कि हमने पहले f की डेफिनेशन से f का ग्राफ जज किया, जनरलाइज भी कर सकते थे, इट इज लाइक कि आप 2n - 1 से 2n + 1 तक डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो आपको रियलाइज होता कि वो 0 आ रहा है, तो आपको रियलाइज होता कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड के बीच में f का इंटीग्रल 0 कर रहा है, वैनिश कर रहा है। बट ये थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस से हमने पहले ग्राफ देखा कि ग्राफ हमारा पीरियोडिकली ऐसे चल रहा है, पीरियोडिक तो नहीं कह सकते बट रिपीट कर रहा है, 1 से 3 में जैसा बना, बेसिकली आप कह सकते हैं 1 से 5 में जो इवेंचुअली बना वही आपका 5 से 9 में बनेगा। एंड उसके हिसाब से हमने जी का एरिया फंक्शन जो था उसको जज किया कि कैसे बन रहा है, कि 1 से 2 तक वो पीक आएगा, 2 से 3 में वो वापस क्योंकि नेगेटिव आना शुरू होगा तो उसके बाद 0 आ जाएगा 3 के बाद जब एरिया कंप्यूट करेंगे 1 से 3 प्लस तक का, तो हमारा एरिया 1 से 3 का 0 हो चुका होगा और आगे का नेगेटिव आएगा, तो ये 3 के बाद नेगेटिव आनी शुरू होगी, जी की वैल्यू 4 पे पीक नेगेटिव होगी और उसके बाद वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा टिल 5 पे वापस 0 हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ जी एक्स। Now moving on to section 4, passage type. It says number of element in X is MC6, then the value of M is. This is paragraph 1. Actually, this is the paragraph. Based on this, you need to find the NX. Okay, what is X? It says सेट S has 1 2 3 4 5 6, सेट S में आपके 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 सेट S में। X भी सेट ऑफ ऑल रिलेशन R फ्रॉम S to S, मतलब S पे रिलेशंस है, तो आपने मैपिंग जो करी है, जो रिलेशंस बनाए हैं वो S से S में ही बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, S से S में आप रिलेशंस फाइंड कर रहे हो R, और R दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो टोटल देखें अगर, तो टोटल S क्रॉस S में आपके कितने एलिमेंट आ जाएंगे, S क्रॉस S में आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे 36। तो टोटल रिलेशन जो होंगे, टोटल रिलेशन विल बी 2 to the power 36 टोटल रिलेशन, इंक्लूडिंग एम्प्टी रिलेशन, सिंगलटन्स, डबलेट्स, जितने भी होंगे सारे टोटल रिलेशन। बट यहाँ पे R का
आपने जो इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आर की कार्डिनलिटी दी हुई है 6, मतलब हमें 6 एलिमेंट के रिलेशन बनाना है, 6 एलिमेंट के, मतलब जो बेसिकली इसमें 6 एलिमेंट के एलिमेंट, तो टोटल 6 एलिमेंट रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल 6 एलिमेंट रिलेशन। तो आपके इसके अंदर एस क्रॉस एस के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 36, तो 36 सी 36 टोटल अगर हम बात करें तो 36 सी 6 टोटल एस क्रॉस एस में देयर विल बी 36 पे ऑर्डर्ड पेयर्स। तो 36 में से 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आप सेलेक्ट कर लोगे, रिलेशन इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो 36 सी 6, तो इतने रिलेशन होंगे 6 एलिमेंट्स के। बट एक क्राइटेरिया और फुलफिल करना है कि फॉर ईच ए बी इन आर वी हैव एब्सोल्यूट डिफरेंसेस 2 और मोर, एब्सोल्यूट डिफरेंसेस 2 और मोर, मतलब बेसिकली इसमें जो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं, मतलब अगर आपका ए और बी सेट रिलेशन आर में होगा, वाला रिलेशन आर में होगा, तो उसमें वो तभी होगा इफ एंड ओनली इफ जब एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 2 और मोर। तो जरा देखना कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं, मतलब बेसिकली आप इसको पहले अलग से जज करो कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 और मोर है एक्चुअली में। तो लेट मी राइट 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आई कैन से 1 इज ऑर्डर्ड विद 1 इज पेयर्ड विद 3, 1 कैनॉट बी पेयर्ड विद 1 क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ जाएगा 0, 1 पेयर्ड विद 2 में एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आ जाएगा, 1 कैन बी पेयर्ड विद 3, 1 कैन बी पेयर्ड विद 4, 1 विद 5, 1 विद 6। लिस्ट ही कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं है। तो 4 एलिमेंट्स, 2 के पेयरिंग देखो, 2 के पेयरिंग 2 कैनॉट बी पेयर्ड विद 1, कैनॉट बी पेयर्ड विद 3, 2 4, 2 5, आई थिंक 2 6, 3 के ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, 3 के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे आई थिंक 3 1, अब पीछे भी जाओगे 3 1, 3 2 कैनॉट बी, 3 3, 3 4 नहीं, 3 5 and 3 6, again 3, 4 can be paired with 4 1, 4 2, 4 4 नहीं हो सकता, 4 5 नहीं हो सकता, 4 6, again 3, 5 can be paired with 5 1, 5 2, 5 3, 3 again, and 5 4 नहीं हो सकता, 5 5 नहीं हो सकता, 5 6 नहीं हो सकता, 6 can be paired with 6 1, 6 2, 6 3 and finally 6 4, 4। तो टोटल अगर हम देखें 4 3 7 3 10 13 16 4 20, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 और मोर है तो दैट विल बी 20। तो बेसिकली इन 20 ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है ना, इनमें से कोई 6 एलिमेंट हमने आर फॉर्मेशन के लिए यूज किए इन 20 में से। तो टोटल विल बी इन दैट केस इंस्टेड ऑफ 36C6, instead of 36C6 I can say it is simply 20C6। 36 में तो टोटल हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे, तो 36 में तो वो भी आएंगे जब एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 से लेसर होगा, सारे के सारे आइडेंटिटी फंक्शन भी आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा। बट हमें सिर्फ वो लेने थे जिनका ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस 2 और मोर है, तो ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस 2 और मोर वाले सिर्फ 20 हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आई थिंक यहीं पे डन हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ सच रिलेशन कितने आ गए, that x be the set of all such relation, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ गए, it will be 20C6। तो m की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड, सेकंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो फर्दर y देखते हैं क्या दे रहा है, क्या डिफाइन किया है। y is r belongs to x, मतलब बेसिकली सेम क्राइटेरिया के अंदर r है। द रेंज ऑफ r हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, अगर आपने इसका जैसे एक रिलेशन लिया 6 एलिमेंट्स का, आपने लेट्स से एक रिलेशन लिया 6 एलिमेंट का, इन 20 ऑर्डर्ड पेयर में से कोई 6 एलिमेंट पिक कर लिए। लेट्स से आपने कहा 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, लेट्स से 2 4, 2 4 एंड मे बी से 6 4, 6 एलिमेंट का लिया। और ये पक्की बात है एलिमेंट ऑफ x होगा, x कंसिस्ट ऑफ ऑल सच रिलेशन जिनमें एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 और मोर है एंड 6 एलिमेंट का रिलेशन है। तो 6 एलिमेंट का एक रिलेशन होगा x के अंदर। बट अब वो कह रहा है कि रेंज ऑफ r, तो इसकी रेंज क्या है, अगर मैं इस रिलेशन की, इस पर्टिकुलर रिलेशन की आपसे रेंज पूछूं, व्हाट इज रेंज ऑफ रिलेशन 1, तो इट विल बी सेट ऑफ ऑर्डिनेट्स, बेसिकली सेट ऑफ y वैल्यूज
जो भी इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर है उनके जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका सेट। तो आई थिंक कहने से 3 4 5 6 4 4 दैट इज 3 4 5 6 रेंज ऑफ आर। अब वो कह रहा है कि कितने ऐसे रिलेशंस हैं जिनकी रेंज कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली वन एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ हमें सिर्फ वो देखने हैं जिनके सेकंड एलिमेंट सेम हो। तो सेकंड एलिमेंट जो सेम है अगर हम उसका काउंट देखें तो आई थिंक 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक करो 3 के कितने आ रहे हैं। 3 जिनके आउट मतलब जिनकी y की वैल्यू 3 है, जिनकी y की वैल्यू 3 है तो आई थिंक आप जज करो y की वैल्यू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आई थिंक 3 आ रहे हैं। 1 3 6 3 5 3। तो ऐसे करके आप पूरा चेकआउट करो कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपके पास ऐसा 6 एलिमेंट नहीं है, मतलब बेसिकली जिनकी y की वैल्यू सेम हो। 6 एलिमेंट ऐसे कोई है ही नहीं। मतलब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आप कह सकते हो 1 3 5 3 एंड 6 3। सिमिलरली अगर आप कहते हो y विल बी 4, y विल बी 4 तो y 4 कौन कौन से क्या डिपेंड्स आ रहा है 1 4 1 4 देन 2 4 सेकंड देन वी हैव 6 4 अगेन 3। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबल वाला कौन सा होगा जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है, जिसके मैक्सिमम आ रहे हैं आई थिंक इट कुड बी 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है 1 2 3 4। आई थिंक 4 ही आ रहा है 6 के भी, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 4 ही आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि ऐसे 6 एलिमेंट कोई है ही नहीं इस 20 ट्रिपलेट्स में, इन 20 ऑर्डर पेयर में कोई 6 ऐसे एलिमेंट ही नहीं है जिनकी आउटपुट वैल्यू सबकी सेम हो। तो रेंज में अगर आप एक एलिमेंट चाहते हो, रेंज कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, तो ऐसा कोई पॉसिबल रिलेशन ही नहीं है। हाँ ऑब्वियसली अगर वो कहता है रेंज कंटेन 2 एलिमेंट तब आप बना सकते हो। तो 2 एलिमेंट में आप एक तो ये 6 वाले ले लो, मतलब अगर वो कहता है रेंज कंटेन्स 2 एलिमेंट तो आप कह सकते थे कि रिलेशन आप ऐसा बना सकते हो कि जिसमें आप 6 के तो 4 ले लो। 6 के 4 कौन कौन सा रहे 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 2 6 3 6 4 6। तो इसमें आपके सारे एलिमेंट 6 पे मैप्ड हैं, फाइनली 6 से रिलेटेड है। और दो एलिमेंट ऐसे ले लो जिनकी आउटपुट सेम हो, मे बी 1 4 एंड से 2 4 2 4। तो ये भी 6 ऑर्डर्ड पेयर्स है जिसकी रेंज क्या आ रही है, जिसकी रेंज की कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, रेंज की कार्डिनलिटी आ रही है इसकी 2। तो क्वेश्चन बेसिकली ये पूछना चाहिए था कि रेंज में 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है, बट रेंज में वो कह रहा है एग्जैक्टली 1 एलिमेंट है। तो इसका मतलब देयर इज नो सच रिलेशन पॉसिबल विच हैज रेंज हैज 2 एलिमेंट। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि कार्डिनलिटी ऑफ y इज 0। फर्दर z क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन इन x सच दैट r इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू s। ओके, r इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू s। तो बस बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन लगा दो, इनमें से कौन से 6 एलिमेंट पिक करोगे सो दैट इट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक तो सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए एंड कोई भी एक एलिमेंट 2 या 3 से मैप नहीं होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 1 के लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी है, आप देखो 1 के लिए हमारे पास चॉइसेस आई थिंक 4 थी। तो आप 1 को 4 एलिमेंट में से मैप कर सकते हो किसी एक के साथ। 1 गोज टू 3, 1 कैन बी मूव टू 3, 1 कैन बी मूव टू 4। 1 को आप 3 से मैप कर सकते हो, 1 को 4 से मैप कर सकते हो, 1 को 5 से कर सकते हो, और 1 को आप 6 से मैप कर सकते हो। लेकिन इनमें से कोई एक ही चूज करोगे। तो इट इज 1 के लिए आपके पास 4 चॉइसेस है, 1 के लिए 4 चॉइस। देन 2 के लिए आपके पास कितनी चॉइस है, अगेन 3, और मैप भी करना है 2 के लिए। मैनी वन हो सकता है बट 1 टू मैनी पॉसिबल नहीं है। 1 गोज टू 4, 1 के लिए 4 चॉइसेस है, 2 के लिए 3, एंड सिमिलरली यू कैन से 3 के लिए भी आपके पास 3 चॉइसेस हैं, 4 के लिए भी 3 चॉइसेस हैं, 5 के लिए भी 3 चॉइसेस हैं, एंड लास्टली 6 के लिए आपके पास 4 चॉइसेस हैं। तो दिस मैनी फंक्शंस विल बी पॉसिबल फ्रॉम सेट एक्स। मतलब सेट एक्स के जो रिलेशन है उनमें से इतने फंक्शन होंगे फ्रॉम एस टू एस फाइनली। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई, कार्डिनलिटी ऑफ z कम्स आउट टू बी 4 स्क्वायर 3 की पावर 4, 4 स्क्वायर 3 टू द पावर 4, और यू मे से 4 इंटू 9 36 स्क्वायर, 36 स्क्वायर। ओके, तो जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें आपको वो कह रहा है कि ny is 0 and this is coming out to be 36 square. तो k modulus of k will be 36. Now look at the second paragraph. It says f is a function from 0 to pi by 2 to 0 to 1 b
a function defined like fx is sin square x and g be a function from 0 to pi by 2 to 0 to infinity. Okay, तो fx तो बेसिकली आपका 0 से pi by 2 में is defined like sin square x. It will be like this. And what about gx? gx भी same domain में defined है 0 से pi by 2 में, and it is given to be root of a quadratic. So I think it is a circle because if it is y, root of pi x by 2 minus x square. So squaring both sides gives you x square plus y square minus pi upon 2x. So it is nothing but I think circle with centered at pi by 4. Centered at pi by 4 and radius is also pi by 4. It is a semicircle because it is a simply positive square root. So it will be like this. Range will be 0 to pi by 4. इसकी रेंज थी 0 से 1. ओके, तो ये हमारे fx और gx डिफाइंड थे. और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 fx dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 gx dx. ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 fx gx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 gx dx. 0 टू पाई बाय 2 gx dx ये निकालना है. तो इट इज 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 व्हाट इज fx. fx दिया हुआ है sin square x इंटू gx. gx दिया हुआ है रूट ऑफ पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 gx. gx इज रूट ऑफ पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो आई थिंक हम इंडिविजुअली तो ये तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं. ये तो सिंपली 0 से पाई बाय 2 में सेमी सर्कल का एरिया, तो इट इज सिंपली पाई आर स्क्वायर बाय 2. और इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा तो आई थिंक थोड़ा सा लेंदी है. बट आई थिंक इसको अगर हम क्लब कर दें लेट्स से, तो इसको आप लिख लो इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2. 0 से पाई बाय 2 पहला फंक्शन इवन है. पहला फंक्शन अच्छा इवन तो हो ही नहीं सकता. ओके, पहला फंक्शन और हम अगर इन दोनों इंटीग्रल को क्लब कर दें तो इट विल बी 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. यार है. और व्हाट इज दिस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1? दिस इज माइनस ऑफ कॉस 2x. तो इट इज इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस 2x अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर मैं पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर का x कॉमन ले लूँ तो इट विल बी सिंपली पाई बाई 2 माइनस एक्स dx. और अब अगर हम एक क्लब्ड वाले इंटीग्रल को, मतलब पहले तो हमने पहले अलग अलग दिए हुए थे दो इंटीग्रल, उन्हें हमने क्लब करके ये फंक्शन सिंगल बना लिया. और अब अगर हम इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएं दैट इज बेसिकली किंग्स प्रॉपर्टी a माइनस एक्स वाली, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स पे आपको रियलाइज होगा कि भाई ये वाला फंक्शन तो सिमेट्रिक है, सेम ही आ रहा है. पाई बाई 2 माइनस एक्स पे पाई बाई 2 एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स, बेसिकली फैक्टर्स इंटरचेंज कर जाएंगे. वो इसलिए होगा क्योंकि वो 0 से पाई बाई 2 में पाई बाई 4 के बाद सिमेट्री था पाई बाई 2 माइनस एक्स करने पे. बट अब चेक करो ये कितना आ रहा है पाई बाई 2 माइनस एक्स करने पे, कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स. तो दैट विल बी कॉस ऑफ पाई माइनस 2x एंड दैट इज नथिंग बट माइनस कॉस 2x. तो यार ये पूरा का पूरा फंक्शन आई इक्वल टू माइनस आई फॉर्म में आ जाएगा. और आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाओगे तो आई चेंजेस टू माइनस आई, हेंस यू कैन कंक्लूड कि भाई आई इज 0. तो इस पार्ट का तो आपका आंसर आ रहा है 0. और उसी पे बेस्ड आपका सेकंड क्वेश्चन एक और है विच सेज 16 बाय पाई क्यूब 0 टू पाई बाय 2 एफ एक्स जी एक्स. तो ये आई थिंक उसने फर्स्ट वाला पार्ट ही इवैल्यूएट करवा लिया. इट इज सिंपली 16 बाय पाई क्यूब इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 एफ एक्स हमारा क्या था? एफ एक्स हमारा था साइन स्क्वायर एक्स. इट वाज साइन स्क्वायर एक्स और जी एक्स था हमारा अंडर रूट ऑफ पाई एक्स बाई 2
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो इसको इवेल्युएट करते हैं। इनफैक्ट ये 16/π³ को अगर हम थोड़ी देर के लिए रब कर दें और इसको i मान लें और फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इंटीग्रल 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ओवर हेयर इट विल बी π/2 माइनस एक्स विल बी कॉस स्क्वायर एक्स। और अभी अभी रियलाइज किया था कि ये सेम आ रहा है π/4 के बाद सिमेट्रिक की वजह से। इट इज π/2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और ऐड कर दो तो इट इज 2i। इट विल बी 0 to π/2 sin square x plus cos square x gone. It is simply under root of π/2x minus x square dx. तो और ये क्या आएगा? ये आएगा आपका सेमी सर्कल का एरिया 0 से π/2 में। सेमी सर्कल का एरिया तो था 0 पे, ऐसे था ना ये, तो ये π/2 था और ये π/4 था। तो ये कितना आ जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाय 16 पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी π³ बाय 32। तो आई की वैल्यू आ गई आपकी π³ बाय 64। आई की वैल्यू आ गई आपकी π³ ओवर 64। π³ ओवर 64 इंटू 16/π³। 16/π³ इंटू आई कंप्यूट करना था। 16/π³ इंटू π³ ओवर 64। तो इट कम्स आउट टू बी 0.25। तो अगेन रेगुलर क्वेश्चन कि मतलब इसमें हमें फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ था, दूसरा हमारे को सर्कल दिया हुआ था और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो उसने वो बना दिया कि जो i इक्वल टू माइनस आई वाली सिचुएशन थी, और दूसरे फंक्शन उसने प्रॉपर इवेल्युएट कराया जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट तो हमारा प्रॉपर्टी लगाते गायब हो गया और उसके बाद जो फंक्शन बचा वो सिंपल सर्कल बच गया, सेमी सर्कल। तो उसका हमने एरिया निकाल दिया। ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्कोरिंग पेपर। तो होपफुली आपका सबका बहुत अच्छा पेपर गया होगा। ओके, थैंक यू।